Hello, welcome back to physics class. Today, the chapter number 4, laws of motion, and the lecture number 5. Before this, we are in the previous 4 lectures, we have discussed about the laws of gravitation, electromagnetic force, then strong nuclear force, weak nuclear force, etc. Right? So, the next topic is the type of force, that is the contact force and non-contact force. Okay. तो कॉन्टैक्ट द वर्ड इट सेल्फ डिफाइन द मीनिंग कॉन्टैक्ट फोर्स. किसी को भी लिखने को आएगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आया तो कोई भी लिख सकता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट. ओके, जैसे अभी मैंने बॉल लिया, दो बॉल लिया, जब ये दो बॉल टकराएंगे एक दूसरे को तो ये क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स. दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. और इफ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, इफ द स्ट्रिंग or any object tied to the string, ये pendulum है यहाँ पे, this is a oscillating pendulum, right? So why this string is taut? ये जो string है, जो डोरी है, वो taut क्यों है, tight क्यों है? Why it is not shrink like this? Because there is some force exerted between the molecule of this string. That is the intermolecular attraction. There is intermolecular attraction. Right, and what is the force of attraction between the intermolecules inside the string? That is the contact force. That is the contact force. Now they will have attractive force because the molecules are get stretch, they stretch, and when they compress, so it will be the repulsive force. Another example, the spring force. This is the spring I have. In the spring force, when I stretch, जब मैं खींचूंगा उसको तो क्या होगा? देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स इनसाइड दी स्ट्रिंग, इनसाइड दी स्प्रिंग. स्प्रिंग के अंदर जो भी इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स करेंगे क्योंकि मैं उसको खींच रहा हूँ. व्हेन आई एम कॉम्प्रेसिंग इट, जब मैं कॉम्प्रेस करूँगा, अगर ये मेटालिक स्प्रिंग है, अभी ये तो ये इसकी तो इजीली कॉम्प्रेस हो रही, बट इफ इट इज अ मेटालिक स्प्रिंग देन अपने बॉल पेन में जो स्प्रिंग होती है बॉल पेन के अंदर, आप देखो, ट्राई करके देखो, जस्ट प्रेस इट लाइक दिस. व्हेन यू आर कॉम्प्रेसिंग इट, सो यू ट्राई टू गो आउट, वो बाहर जाने की कोशिश करता है बिकॉज देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स. जब वो कॉम्प्रेस होता है तो क्या क्या रिपल्शन होगा, और व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग इट तो इट विल ट्राई टू अट्रैक्टिव फोर्स. सो दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. दिस इज नोन एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट. अभी देखते हैं डेफिनेशन कॉन्टैक्ट फोर्स की. द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज the contact force arises due to direct physical contact. Just underline this: direct physical contact between interacting objects or interacting bodies. That is known as contact force. Okay, the contact force has its origin in electromagnetic interaction between the bodies. जो भी electromagnetic forces है, टेंशन फोर्स है, फोर्स इन फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इन लिक्विड है, फ्रिक्शन इन सॉलिड है, बायन फोर्स है. कोई भी अगर बॉडी फ्लोट हो रही है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन दी वाटर सरफेस, तो वाई इट डज नॉट सिंक? बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन दी फ्लोटिंग बॉडी, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. अंडरस्टूड? देन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन. तो जब भी कोलिजन होगा, नाउ व्हेन आई एम होल्डिंग दिस ऑब्जेक्ट ऑन माई हैंड, सो this ball tried to exert a force on my hand in the downward direction. That is the action force. That is the action force or weight of the ball in the downward direction. But at the same time, why this my hand is not going down? Because whatever the force exerted by ball, the same force equally in magnitude but opposite direction, in the upward direction, the reaction force exerted on the ball, so that it is in equilibrium position, equilibrium condition, right? So this force, there is a contact, so this force is known as a contact force. So here the normal reaction force is a contact force. Got it everyone? Fine. So normal reaction force during the collision और spring force, अभी मैंने बताया spring का, tension in a string, वो भी मैंने आपको दिखाया अभी, force of friction in solid and liquid, right? in solid जो भी होगा, मान लो अभी ये आई एम टेकिंग द डस्टर, आई एम होल्डिंग द इन द हैंड, राइट. सी आई एम मेकिंग स्लैंटिंग, स्लैंट कर रहा हूँ तो भी गिर नहीं रहा हूँ, नॉट फॉलिंग डाउन, राइट. अभी यहाँ पे देखो,
इफ आई एम टिल्टिंग मोर देन इट मे गो डाउन. अब यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, दिस इज रफ सरफेस. ओके, माई हैंड इज ऑल्सो लिटिल बिट रफ, नॉट स्मूथ, राइट. बट इफ आई एम टेकिंग सम अदर, जैसे अभी बॉल लिया, तो बॉल को अगर ये रहेगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा अगर उसको स्लैंटिंग किया तो क्या होगा, इट विल स्लाइड. So friction will be less. Okay, so it is the contact force. So fundamentally contact forces are electromagnetic nature or electromagnetic force. जो भी electromagnetic force है, all these are the contact forces. But in Newton mechanics electromagnetic origin not concerned. Newton क्या बोलता है कि electromagnetic origin is not concerning, right. The force of friction is due to the, why the force of friction occurs is due to the relative motion between surface in contact. राइट. व्हेन वी आर एबल टू वॉक, जब हम चलते हैं, वाई वी आर एबल टू वॉक, अगर मान लो केले का छिलका पड़ा है, बनाना स्किन फेल ऑन द फ्लोर एंड ट्राई टू वॉक ऑन इट, और ऑयल गिरा हुआ है, कभी कभी घर में अगर टाइल जो है बहुत स्मूथ होती है, राइट, जब पानी गिरता है या कोई पोछा मार रहा है तो साबुन का पानी होता है, सोप लिक्विड होता है, लिक्विड सोप गिरा हुआ है, तो हम बोलते हैं रुको बाबा, लेट इट ड्राई. क्यों? बिकॉज it is the sliding, so the friction is less. So there is a relative motion between the two objects when they are in contact, that is called as frictional force. We will this type of frictional force will study in the special topic, special lesson. Okay, then the buoyant force exerted by liquid on floating objects. Buoyant force, कोई भी object float हो रहा है on the water surface, so that is also the contact force. So this is all about the contact force. अभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? आई विल शो द डेमोन्स्ट्रेशन फर्स्ट. ओके, फॉर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देर इज नॉट अ नेसेसरी ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट. जरूर नहीं कि दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, राइट. अभी मान लो इफ आई रिलीज दिस ऑब्जेक्ट, राइट, सो व्हाट विल हैपन. अभी देखो यहाँ पे अर्थ जो फ्लोरिंग है, फ्लोर है और ये ऑब्जेक्ट है, राइट, है क्या कोई भी दोनों में कॉन्टैक्ट? सो देर इज नो कॉन्टैक्ट. बट इफ आई रिलीज दिस, इट विल गो डाउन, इट इज कमिंग डाउन. So this is due to the gravitational force exerted by earth on this object, but there is no actual physical contact. So it is a non-contact force. हम उसको क्या बोलेंगे? Non-contact force. Student, let me show you another example for the non-contact force, which is a magnetic force. Which is a magnetic force. Okay. So I have the magnet plus some magnetic substance. Okay, so let me show the demonstration so that you will get a clear idea about the non-contact force. Okay, this is what I have, the magnetic substance, iron nails, okay, or iron pins, right, safety pins are there, and this is a magnet. If I am trying to bring near this magnetic substance, see, does it come, does it attract? Now yes, yeah. So even though there is a gap between the magnetic substance and magnet, when it come very close to it, when this magnet or when this magnetic substance come in the magnetic field, यहाँ पे क्या magnetic field के पास में जब आता है, so that will be the non-contact force, the force at a distance, which we can say the force at a distance, that is called as a non-contact force. जो थोड़े distance पे दूरी पे attract होता है उसको हम क्या बोलते हैं? non-contact force. Got it everyone? अगर मान लो बहुत हाई इलेक्ट्रिक हाई टेंशन वायर है और हाई टेंशन वायर के पास आप खड़े रहेंगे, राइट, तो कुछ टाइम के बाद वो अट्रैक्ट करता है, दैट पर्सन गेट्स स्टक टू दी हाई टेंशन वायर एंड डाइड. इट हैपन्स. सो बी केयरफुल, डोंट स्टैंड नियर दी हाई टेंशन वायर, राइट. नियर दी जो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर जाओगे तो वहाँ पे जो 40,000 वैट्स 40,000 वोल्ट्स का वायर जो होता है, वायर ओवरहेड वायर होता है, वेरी हाई वोल्टेज जो रेलवे लाइन का होता है, तो उसके नज़दीक अलाउड नहीं. वहाँ पे स्टिक इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, डोंट कम नियर दिस ओवरहेड वायर्स बिकॉज इट मे अट्रैक्ट यू. ओके, सो इट्स वेरी सो इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. देखते डेफिनेशन. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स विदाउट नेसेसिटी, राइट. सो विदाउट नेसेसिटी, दिस इज द की लाइन. This is of physical contact between the interacting objects. Each of the four fundamental forces, जो four fundamental forces are in nature, right, that is the non-contact action at a distance type of force. This is at a distance. This force, non-contact force, is at a distance type of force. Now what are the example? Gravitational force, electromagnetic force,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आने वाला है एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फॉर 2 मार्क्स ओनली, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है. यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, which of the following property shows the contact force, which of the following property shows the non contact force. So ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, जो लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फोर्स का, तो वो है रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स. ओके, सो लेट अस फोकस ऑन दैट रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स. ओके, सॉरी, इसका आपने ये ले लो और स्क्रीनशॉट ले लो, आई हैव रब बाय मिस्टेक. Now the next is real force. Real force, and this is pseudo force. Now real force means the force which is due to the actual interaction between the two bodies. या we can trace the origin of that force, कि वो फोर्स का ओरिजिन कहाँ पे, उसको हम फाइंड कर सकते हैं, तो दैट इज द रियल फोर्स. और स्यूडो फोर्स मतलब विच इज़ नॉट ड्यू टू द एक्चुअल इंटरेक्शन, और जिसका ओरिजिन हमको पता नहीं है, राइट, और विच इज़ ड्यू टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और विच इज़ ड्यू टू द एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर रियल फोर्स का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो क्या होगा, अभी मान लो व्हेन आई रिलीज दिस ऑब्जेक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट कम डाउन. हमको पता है, वी नो दैट व्हाई दिस बॉल कम डाउन, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वी नो द ओरिजिन, राइट. नाउ अनदर, जैसा अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स में भी वही है, राइट. सो देयर इज ऑल्सो, नाउ व्हाई दिस मैग्नेट अट्रैक्ट दिस, इसको क्यों अट्रैक्ट किया, बिकॉज इट इज द रियल फोर्स. We know that it is due to the magnetic force. So whatever the magnetic field produced around this magnet, right, so that magnetic field experience a force to the magnetic substance, right. So magnetic force is the real force. Then another force is tension in the string, tension in the string, same example. So this is why this string is taut, because of tension. So it is a real force, it is a real force. Another example, now let's have the example of spring, right. When I extend a spring, so why this, whether this is a real force or pseudo force, so it is a real force, right. What is the force inside the string, or when we extend the spring, so extension in the spring, so what are the force is there, that is the real force, okay, which is ड्यू टू एक्चुअल इंटरैक्शन, और जिसका ओरिजिन हमको पता है. ओके, सो लेट अस राइट प्रॉपरली, सिस्टमेटिकली अच्छी तरह लिख लेते द रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स. ओके, अ रियल फोर्स और ट्रू फोर्स, फर्स्ट पॉइंट, अ रियल फोर्स और ट्रू फोर्स हैज its origin can be traced to any of the four basic interaction between matter
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रियल फोर्स। जो एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आपको सिस्टमेटिकली प्रॉपरली लिखना है, राइट, डोंट राइट सो शॉर्ट वे, प्रॉपर डेफिनेशन निकला इस बार जब आई एम गिविंग ऑल्सो इन प्रॉपर वे। ओके, देन द स्यूडो फोर्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज अराइजेस ड्यू टू, it is arises due to the acceleration of the observer, due to acceleration of the observer frame of reference, okay, frame of reference, and not due to any interaction, any of the four basic interaction, due to any of four basic interaction force. It is not due to the gravitational force, not due to electromagnetic force, not due to the strong nuclear force, or not due to the weak nuclear force, right? तो ये अलग ही होता है. दिस इज ड्यू टू द एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे कि इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देना है स्यूडो फोर्स का, तो सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस एंड ड्राइवर सडनली स्टार्ट द बस. तो क्या होगा? यू विल गेट अ जर्क इन द फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन. अब पीछे आपका जो फेस है, जो अपर बॉडी है, that will get a jerk on the backward direction when the driver suddenly start. Okay, yeah, if the bus is moving with the uniform speed में बस जा रही है, okay, and suddenly he has accelerate, या suddenly उसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा? you will get a jerk in the forward direction. अगर ब्रेक लगाया तो क्या होगा? आपका बॉडी जो है वो आगे जर्क होगा. वाई? कोई धक्का मारा पीछे से? नहीं. सो इट इज़ ड्यू टू वॉट? इट इज़ ड्यू टू द स्यूडो फोर्स. तो मतलब बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बस है, राइट. तो बस को अगर एक्सेलरेट किया कंटिन्यूसली तो यू विल नॉट स्टेबल ऑन योर प्लेस. कंटिन्यूसली यू विल मूविंग बैक एंड फोर्थ लाइक दैट. ओके, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्यूडो फोर्स. अनदर एग्जाम्पल, when you are sitting in a giant wheel, हॉरिजॉन्टल जायंट व्हील होगा. आप कभी इमेजिका गए होगे, तो इमेजिका में है बड़े बड़े वो नाइट्रोजन साइकिल वगैरह है, या जो हॉरिजॉन्टल या पेंडुलम भी है वहाँ पे, राइट. तो आप जब पेंडुलम राइड में बैठोगे तो व्हेन द पेंडुलम गोज ऑन द लेफ्ट साइड, योर बॉडी गेट जर्क ऑन द राइट साइड, राइट. तो हमको क्या टाइटली पकड़ के रखना पड़ता है. वी हैव टू होल्ड इट टाइटली प्रॉपरली. वाई? बिकॉज ऑफ द स्यूडो फोर्स. अंडरस्टैंड? या व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही, तो देर इज सम स्यूडो फोर्स एक्ट ऑन इट विच वी कॉल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हम उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जैसे आपने कभी वॉशिंग मशीन में टॉप लोड वाला जो वॉशिंग मशीन होगा, राइट, तो उसमें कपड़े जो है आफ्टर ड्रेनिंग, और जब भी ड्रेन हो जाए, जब उसको ड्रेन हो जाता है, ओनली द ड्राई क्लॉथ्स आर देयर, राइट. तो ऑल द क्लोथ्स गेट अवे फ्रॉम द सेंटर. बेस्ट एग्जांपल है आपका घर में, अगर वॉशिंग मशीन नहीं हुआ तो मिक्सी तो सबके घर में रहता है, मिक्सर ग्राइंडर. तो जब मम्मी ग्राउंडनट को क्रश करती है, उसके बाद देखो जो ग्राउंडनट पार्टिकल्स है, दे ऑल आर मूव अवे फ्रॉम द सेंटर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ड्यू टू द, इट्स कॉल्ड एज द स्यूडो फोर्स. उसको क्या हम क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके, सो विच इज ड्यू टू द एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, not due to the actual interaction. That is called as the pseudo force. Okay, दूसरा एग्जांपल अगर आपको देना है, many people they are staying in a flat apartment, तो लिफ्ट होगा. तो when you are traveling in a lift, right, अगर मान लो 7th फ्लोर पे जाना है, 6th फ्लोर पे जाना है, राइट. so when we start the button at the beginning, so initially हमको ऐसा लग रहा है heaviness लग रहा है, someone is exerting force on our body, so that is the pseudo force. Or when you are going down, if the lift is accelerating down, okay, जब वो नीचे के साइड पे एक्सेलरेट होती, तब हमको लग रहा है कुछ तो हल्का लग रहा है.
वेट कम होगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज ऑफ द pseudo force, because of the pseudo force. Understood? So these are the example of pseudo force which is not due to the actual interaction. In the pseudo force there is Newton's laws of motion are not obeyed. यहाँ पे जो है न्यूटन्स के लॉज ओबे नहीं होते. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट ओबे, but here the Newton's laws are obeyed. Newton's laws of motion are obeyed. यहाँ पे obey होता है. We can obey the Newton's laws. Okay. So here in case of real force, अगर एक force exert हो रहा है, if I am exerting a force, action force on the wall, right, at the same time the wall also exert a reaction force on my body, so it is, there is action force accompanied by reaction force. Okay, so in case of real force, a real force on one body, a real force on one body due to another body is always accompanied by an equal and opposite reaction on the other body. Reaction on the other body. इसमें भी स्यूडो फोर्स और रियल फोर्स में आपको 2 या 3 मार्क का डिफरेंस पूछा जा सकता है. तो आप डेफिनेशन मीनिंग दे दो, एग्जांपल दे दो अलग अलग, राइट. उसके जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी दे दो, राइट. तो 2 पॉइंट बहुत क्लियर है कि इसमें न्यूटन लॉ ओबे होते हैं, इसमें न्यूटन के लॉ ओबे नहीं होते. अगर मान लो इसमें न्यूटन्स के लॉज ओबे करने हैं, राइट. अभी मान लो द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. अभी ये पेंडुलम लिया और ये बॉडी ली विच इज टाइड टू द स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, बराबर. अभी यहाँ पे मुझे मोशन परफॉर्म करनी है, राइट. Why this body is able to revolve in a circular path? Because of the centripetal force, centripetal acceleration. So that is the real force. But at the same time, there is one more force exerted, which is outward to the center, okay, or away from the center. That is the centripetal force. Sorry, that is the centrifugal force. Okay. So to explain to apply the Newton laws of motion in this case, so यहाँ पे आपको एक स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा, जो स्यूडो फोर्स का यहाँ पे मेजरेबल है, राइट. स्यूडो फोर्स मतलब इमेजिनरी फोर्स, लेकिन जरूर नहीं कि इमेजिनरी, वो मेजरेबल भी है. अभी यहाँ पे देखो, व्हेन द बॉडी रिवॉल्व इन अ सर्कल, राइट, सो स्यूडो फोर्स कैन बी मेजर एंड हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रिपेटल फोर्स, जो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, राइट, प्रीवियस चैप्टर में. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा कि देयर इज वन मोर फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस फॉर्मूला इज mv²/r. क्या फॉर्मूला देखा था हमने? द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv²/r. और जो सेंट्रीपेटल फोर्स था, ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स था, दैट वाज -mv²/r. ओके. So this is centripetal force, this is centrifugal force, this is fugal and this is petal. Petal मतलब centripetal मतलब toward the center, which is real force. Okay. And how we are getting the real force? Because of the tension in the string. When the stone or object revolve in a horizontal circle, so how we get the centripetal force to revolve the object in a circular path? Because of the tension applied to the string. और tension कहाँ से आया? We are giving muscular force. हम उसको मस्कुलर फोर्स दिया. सो मस्कुलर फोर्स ट्रांसफर द एनर्जी जो भी है, मस्कुलर एनर्जी दैट ट्रांसफर टू द स्ट्रिंग एंड विच इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल.
तो ये सब एनर्जी ट्रांसफर वगैरह हम बाद में देखेंगे. ओके, सो दे हैव गिवन एग्जाम. और इफ आई एम लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिफ्ट कर रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स, आई एम लिफ्टिंग सम ऑब्जेक्ट. ओके, सो इट इज़ द रियल फोर्स. इट इज़ द रियल फोर्स. पुश और पुल, कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करे, पुल करे, दरवाजा ओपन करे, लगा रहे, ओपनिंग डोर, क्लोजिंग द डोर, सो दैट इज ऑल्सो रियल फोर्स. ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन एबल टू वॉक ऑन द फ्लोर. अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, राइट, वाई आई एम एबल टू वॉक, बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द माई फीट एंड द फ्लोर. ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं यहाँ पे चल नहीं सकता है. आई कुड हैव स्टैंड बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. Normal reaction, I can stand but I cannot walk. I cannot walk. Why? Because there is no friction. अगर friction नहीं तो it is not real force. So there must be friction. So frictional force is the real force. Okay. दूसरा फोर्स है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मर्क्यूरी बैरोमीटर. तो मर्क्यूरी बैरोमीटर क्यों प्रेशर दिखाता है 746 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, 746 मिलीमीटर, राइट. सो दैट इज द एटमॉस्फेरिक, sorry 760, sorry it is 760 millimeter, 760 millimeter, 760 millimeter of Hg. So this is the atmospheric pressure. So जो भी force exerted by atmosphere per unit area, force exerted per unit area, that is the pressure. प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मर्क्यूरी पे, एंड दैट्स वाई मर्क्यूरी शोज द रीडिंग ऑन द बैरोमीटर. दूसरा जो है, हम गैरेज में जाते, कार गैरेज में, टू व्हीलर गैरेज में, तो कार को पूरा उठा लेते ऊपर. सो आर दे लिफ्टिंग द कार मैन्युअली? सो नो, दे आर लिफ्टिंग द कार बाय यूजिंग अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, बाय यूजिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट. सो दिस इज द दिस इज द रियल फोर्स. ये क्या हुआ, रियल फोर्स हो गया. ओके, देन द फैन रोटेट हो रहा है, फैन इज रोटेटिंग. क्यों, कोई उसको ये कर रहा है क्या? नहीं, अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है दैट एक्सपीरियंस अ टॉर्क. और टॉर्क क्या है, फोर्स है, राइट. बिकॉज ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दी मोटर, एंड द मोटर उसके अंदर शाफ्ट होता है, द शाफ्ट इज रोटेटिंग. और शाफ्ट को क्या है, द ब्लेड्स आर कनेक्टेड, सो ब्लेड्स ऑफ अ फैन आर rotating in a circular path. Okay, so it is due to the real force. So rotation of blades of fan is due to the real force. Okay, force और जो भी mercury barometer जो reading बता रहा है, that is the force exerted by atmosphere on the mercury. So these are all called as real forces. Okay, force in the atmosphere. अगर मान लो हमको ये न्यूटन्स के लॉ ओबे करने हैं, राइट. सो टू ओबे दी न्यूटन लॉ इन दी pseudo force, so we have to consider, right, to obey the Newton's laws, to obey Newton's laws in this. Okay, we have to consider pseudo force in non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference in the sense it is accelerated frame of reference. When the body is accelerating, car is accelerating, accelerated frame of reference. Car is moving with the uniform speed. It is non-accelerated or inertial frame of reference, right? तो ये सब आपको कंसिडर करना है, राइट. उसके बाद हम देखेंगे रियल फोर्स में द मैकेनिकल फोर्स ऑन अ बॉल व्हेन द बैट्समैन हिट्स. जब भी बैट्समैन, बॉलर ने जो बॉल फेंका, राइट, सपोज द बॉल थ्रोन बाय द बैट्समैन एंड ओके, सो जो भी फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट्समैन इन द अदर डायरेक्शन, सो दैट इज रियल फोर्स. So all these are the example of real force having the electromagnetic origin, right. और मैंने और भी एग्जांपल बताया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द स्यूडो फोर्स, राइट. सेंट्रीफ्यूगल मशीन, अभी आजकल टेस्टिंग चल रहा है, ब्लड टेस्टिंग वगैरह कोविड-19 का. तो जो सैंपल रहता है ब्लड टेस्ट का, तो दे आर यूज द सेंट्रीफ्यूगल मशीन, राइट. तो क्या होता है, जो ब्लड के अंदर जो भी प्लाज्मा है, जो भी प्लेटलेट्स है, जो भी RBC WBC, दैट गेट सेपरेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर,
Why? Because of the centrifugal force. So this centrifugal force is the pseudo force. Is the pseudo force. Okay. जब हम when we are traveling in a car or bus, okay, when the car takes left turn, when the car takes a left turn, our body get jerk on the right side, or when the car or the vehicle turns right side, our body get jerk in the left side. So this is what the Coriolis force. इसको क्या बोलते हैं? एक साइंटिस्ट है Coriolis नाम का, तो he has discovered this force. Okay, so it is the Coriolis force. So this Coriolis force is pseudo force. When the body is moving in a circular path, okay, in the rotating frame, the sideways Coriolis force appears to act on a body in a rotating frame, okay, only if the body is moving relative to frame. कोई भी अगर मान लो डांसर जो है, तो डांसर इज डांसिंग ऑन दैट रोटेटिंग डिस्क पे, तो ही हैज़ टू बैलेंस हिज बॉडी, अदरवाइज वो गिर जाएगा. लेकिन सो ही इज बैलेंसिंग प्रॉपरली बिकॉज द pseudo force, the Coriolis force act on his body in the outward direction. Okay, so this is all about the real force and pseudo force. एक टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है, टेक्सुअल क्वेश्चन इट इज, you are inside a closed capsule from where you are not able to see anything about the outside world. कैप्सूल इन द सेंस, कैप्सूल मतलब अपने टैबलेट का कैप्सूल नहीं, ओके, ये कैप्सूल अलग है, कैप्सूल. लेकिन जो कैप्सूल है वो जो अपना टैबलेट का कैप्सूल होता है, मेडिसिन का कैप्सूल होता है, उसके शेप जैसे होता है, सिलेंड्रिकल ऐसे, इट इज लाइक दिस, ऐसे शेप होता है उसको. इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वो जो कैबिन होता है, that is in the rocket when the astronaut is moving or going to space. जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है, राइट, तो he has to travel in a capsule of the rocket, राइट. तो रॉकेट में जो चैम्बर होता है वो कैप्सूल का शेप का होता है, दिस शेप ऑफ दिस कैप्सूल, दैट्स व्हाई इट इज, दैट चैम्बर इज कॉल्ड एज अ कैप्सूल. ओके, सडनली यू फील दैट यू आर पुश टूवर्ड्स योर राइट. कैन यू एक्सप्लेन पॉसिबल कॉज? अगर राइट में आप टर्न ले तो मतलब कि दैट कैप्सूल इज मूविंग, दैट रॉकेट इज मूविंग टू लेफ्ट साइड, दैट इज मूविंग द लेफ्ट साइड, अगर राइट में मूव हो रहे थे. इज इट अ फीलिंग और रियलिटी, राइट. तो ये क्या है, ये फीलिंग हो रहा है, इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज नॉट अ रियल फोर्स. ओके, सो दिस इज लॉट गिव एटलीस्ट वन मोर सिचुएशन लाइक दिस. तो आप काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हो, राइट. इसका अगर पैरेलल एग्जांपल देना है तो लिफ्ट का एग्जांपल ले लो, राइट. जब अगर मान लो लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखा है, उसके ऊपर आप खड़े हो एंड जस्ट स्टार्ट द बटन ऑफ द लिफ्ट एंड द लिफ्ट इज मूविंग अप, तो क्या होगा, वो जो रीडिंग देखो स्केल पे, वेइंग स्केल पे, यू विल फाइंड मोर. वाई? बिकॉज ऑफ हेवीनेस, कि आपको लग रहा है कि आपका वजन ज़्यादा है, बिकॉज द लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अप. अगर इफ़ द लिफ्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, तब उस पर जो वेइंग स्केल पे रीडिंग है वो कुछ भी नहीं रहेगा, इट विल बी सेम एज दैट ऑफ योर वेट ऑफ द बॉडी, राइट. अनदर केस व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउन, राइट, अगर एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेशन जा रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेशन मतलब देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, राइट. इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन, देन द वेट ऑन अ weighing scale will be less. So what are the force exerted? That is the pseudo force. Okay, so this is all about real and pseudo force. अभी हम देखेंगे अगला टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम. हम क्या लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम. तब से इसका स्क्रीनशॉट ले लो.
free body diagram or force diagram. It is also called as force diagram. Okay. अभी देखो यहाँ पे before going to draw the diagram, right? Let me have the some demonstration. मैं एक demonstration दिखाता हूँ. I have this ball. Okay. Now this ball is at rest on my hand, right? So why this ball is at rest? Because some net force, the net force acting on the ball is 0. Okay, मतलब this side force, this side force, this side all force, upward and downward. तो जो टोटल फोर्स है बॉल पे क्या है, 0 है, राइट. तो यहाँ पे हम एट दिस मोमेंट, राइट, सो देर इज एनी वर्टिकल मोशन और डाउनवर्ड और अपवर्ड विच एट रेस्ट. सो देर आर ओनली 2 फोर्स आर एक्टिंग एंड दे आर ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड. दे आर ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड. वह एक है पहला फोर्स, द वेट ऑफ द बॉल विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg, we call it mg, and this mg, the force exerted by my hand on the ball vertical direction, that is the normal reaction, that is capital N. Okay. So here let's have the body. If I am taking a block, एक block लिया मैंने, this is the center of gravity of the block, then the forces acting on this block which is at rest, force acts downwards, this is mg, and the force exerted by this surface on the block in the upward direction, normal reaction. It is called as the normal reaction. तो टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस, अगर इसका इक्वेशन लिखना है, यहाँ पे तो मोशन कोई नहीं, राइट. व्हाट वी कैन राइट, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट हियर एम ए. ओके, बट देर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, देर इज नो वर्टिकल मोशन of the block. The block is at rest. Does the block is moving? No. अगर block move नहीं हो रहा है तो m into a, तो it is a is equal to 0 आएगा. So this can be written as n minus mg, which is equal to 0. So n is equal to mg. So what are the reaction force? Same. What are the weight of the body? Same magnitude for the reaction force, so that the body is at rest. There is no vertical motion, right? तो ये जो diagram है, this when we are what we can say, when we are separating the number of forces are acting on a body, when the body is in motion, number of forces acting, and that forces can be separate out separately. We can draw the in pictorial form or picture form. We can we can depict it in the diagram form. Okay, so that is known as the free body diagram. हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम. अभी फ्री बॉडी डायग्राम का प्रॉपर हम डेफिनेशन देखेंगे. वी कैन हैव द डेफिनेशन ऑफ दिस फ्री बॉडी डायग्राम. सो लेट्स राइट द फ्री बॉडी डायग्राम डेफिनेशन. ओके, अ डायग्राम फॉर ईच बॉडी, अ डायग्राम फॉर ईच बॉडी, diagram for each body of the system, I have to write the big font. Many students demanded that sir is writing so short font. So system depicting मतलब draw the graphically, to express graphically, depicting all the forces on the body by the remaining part of the system,
is called free body diagram. सो एग्जाम में कभी कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो बेस्ट वे टू राइट दिस डेफिनेशन, राइट. सो अ डायग्राम फॉर ईच बॉडी ऑफ द सिस्टम डिपेक्टिंग मतलब एक्सप्रेस इन पिक्टोरियल फॉर्म, डायग्राम फॉर्म में, उसको अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं. ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट. अब यहाँ पे रखा है, इसको हम सेपरेट किया. अभी यहाँ पे सिंगल बॉडी है, राइट. बट इफ द नंबर ऑफ बॉडीज आर देयर मोर देन 2 बॉडीज, ओके. फॉर एग्जाम्पल मान लो इफ आई एम टेकिंग दिस बॉडी, ओके, और इसको मैंने और एक लगाया फोर्स, एक फोर्स लगाया, अभी देखो यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू यूज दिस, ये मेरा पुली है, ओके. देखो यहाँ पे ये पुली का काम कर रहा है. जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इक्वालेंट, ओके. ये पुली यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुली है, और ये जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, राइट. और यहाँ पे एक वेट लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दूसरा वेट लगा है. सी नाउ इट इज़ मूविंग डाउन, क्योंकि ये जो पाउच है इसका वेट ज़्यादा है. सी इट इज़ एक्सेलरेटिंग, ये जा रहा है अभी, यहाँ पे टेंशन है, राइट. तो यहाँ पे 2 बॉडीज आ गया है, ये पूरा सिस्टम है. तो अभी देखो यहाँ पे फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है, पेंडुलम पे जो टॉप है जो भौरा है इस पे एक्ट हो रहा है, ये पाउच पे एक्ट हो रहा है, तो इस पे नीचे जा रहा है, राइट. अभी यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग, ओके. दिस विल बी कैपिटल टी, दिस विल बी कैपिटल टी, टेंशन सेम रहेगा, राइट, बिकॉज इट इज़ एक्सेलरेटिंग, मूविंग डाउन. देखो ज़्यादा हो रहा है, वो वेट ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन भी है. अगर मैंने पकड़ के रखा है यहाँ पे, इसलिए आई एम होल्डिंग दिस, राइट. बट इफ़ आई रिलीज दिस, सो इट विल गो डाउन, नीचे जा रहा है. सो ये पूरा अभी देखो यहाँ पे. तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, मतलब फोर्स डायग्राम, कि वी कैन सेपरेट दिस, इसका इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट वी कैन सेपरेट आउट, इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो सेपरेट कर सकते हैं. एंड जो भी पूरा ये स्ट्रक्चर है डिपिक्टेड है जो भी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम, राइट. और एक पुली ले लो यहाँ पे, राइट. यहाँ पे और एक पुली ले लो, तो 3 पुली पे आप यूज़ कर सकते हैं. मल्टीपल पुलिस, नंबर ऑफ पुलिस कैन बी यूज. तो आपको आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट की क्या है, ओके. तो ये काम करेंगे, इसका एक एग्जांपल लेंगे, सो यू विल गेट अ बेटर क्लियर आइडिया अबाउट दिस फोर्स डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम. एक एग्जांपल लेंगे इसका. तो जो अभी मैंने डेमोस्ट्रेट दिखाया उसी को पैरेलल एग्जांपल है. तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. Okay, let's have the example for this. This is the pulley. जो मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था, ये एक्सिस ऑफ द पुली है. नाउ द स्ट्रिंग टाइड टू इट पास ओवर इट, देन टेक दी सम वेट हियर, वेट यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वेट लिया दूसरा, the 2 weights are attached here, okay. so tension along the string, ये T रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में, टेंशन हमेशा ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे भी टेंशन ऊपर रहेगा, कैपिटल T. now let us see what are the forces acting on this, okay. यहाँ पे जो है the weight of the this block acts vertically downward, M1 into G. मान लो इसको मैंने M1 बॉडी लिया, जिसका जो वेट है M1G होगा. दिस इज M2 बॉडी whose weight acts vertically downwards, that is M2G, okay. then here if this is going down, okay, इसको मैं ज़रा नीचे लेता हूँ, I will take this down, taking this down, M2G. now this side it is going down, okay. तो यहाँ पे क्या आएगा, जो एक्सेलरेशन है इसका एक्सेलरेशन नीचे आएगा, इट इज़ एक्सेलरेटिंग अप, ऊपर जा रहा है, दिस इज एक्सेलरेटिंग अप,
नाउ सी व्हाट आर दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट. अभी इसको सेपरेटली हम कैसे ड्रॉ करेंगे. ओके, लेट अस सेपरेट दिस. द सेपरेट कैन बी ड्रॉ लाइक दैट. दिस ब्लॉक 1 जो M1 ब्लॉक है, व्हाट आर दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस. इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं. सो वेट ऑफ द ब्लॉक एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. M1G ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज द टेंशन T. नाउ अनदर ब्लॉक, ये सेकेंड डायग्राम, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, और थर्ड डायग्राम मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. यू टू सेपरेट द फोर्सेस जो भी बॉडी को अलग अलग, सिस्टम को अलग अलग करना है, एंड देन शो दी फोर्सेस. सो हियर द फोर्स इज M2G. इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है टेंशन ऊपर के डायरेक्शन पे, that is T. This force, both the force are tension. The pulley is here, frictionless and inextensible string. Okay, now here let us write the equation of motion. अब यहाँ पे हमको equation of motion in terms of जो भी forces act हो रहे, so write the total force, net force act in a body which is equal to the mass times acceleration, which is equal to the mass time acceleration by जो न्यूटन सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, F इज इक्वल टू एम ए. सेकेंड लॉ इज F इज इक्वल टू एम इंटू ए. राइट, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल, सॉरी दिस ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी. ओके, एंड F जो होगा दैट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. दैट विल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अभी यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन अगर देखा जाए तो जस्ट टेक दिस इनटू डायरेक्शन. जो भी ऊपर है तो ऊपर का जो भी फोर्स है दैट यू हैव टू टेक पॉजिटिव. नीचे का जो होने का हमेशा नेगेटिव लेना है. अगर डायरेक्शन आपको नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज हो रहा तो. ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे. लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस. फॉर मास 1, फॉर मास 1, फॉर मास 1. ओके, सो हाउ कैन वी राइट द इक्वेशन फॉर दिस. सो दिस टेंशन, बॉडी ऊपर जा रही तो ये टेंशन ज़्यादा होगा, दिस फोर्स विल बी मोर, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा. ओके, सो दैट विल बी, सो और इट इज पॉजिटिव, दिस टेंशन इज पॉजिटिव. सो T माइनस जो M1G है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव. तो M1G विच इज इक्वल टू द दिस एक्सेलरेशन इज अप. ओके, दिस एक्सेलरेशन इज अप, सो इट इज M इंटू ए. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ what is the expression for this body. यहाँ पे क्या आएगा एक्सप्रेशन इसका, the for mass 2 what we can write here again, T minus M2G which is equal to M2G डाउनवर्ड है, T ऊपर है, इसलिए T को पॉजिटिव लिया, M2G को नेगेटिव लिया, which is equal to the, now the ball is accelerating down. तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, दिस इज M1A माइनस M2A, दिस विल बी माइनस M2A. सो लेट अस मेक दिस पॉजिटिव. अभी इसको पॉजिटिव बनाना है, तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको इधर लेके आऊँगा, M2G माइनस टेंशन विच इज इक्वल टू M2A. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 ये देखा क्यों लिया मैंने लिया, क्योंकि जो M2A ये जो फोर्स है इसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है, मेक इट पॉजिटिव. राइट, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. वी कैन फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ओके, जो भी बॉडी जा रही है उसका एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एंड टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग. सो ये जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन है उसका हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, so adding 1 and 2 we can write, adding to find acceleration, okay, adding 1 and 2 we get, तो देखो क्या ऐड करके क्या मिलेगा हमको, M1A प्लस
m2a which is equal to t minus m1g plus t, something went wrong, okay, mg plus mg m2g माइनस टी. अभी देखो यहाँ पे टी टी एक टी प्लस एक माइनस एक कट हो जाएगा, ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज m2g माइनस m1g. यहाँ पे कॉमन ले लेते m2 माइनस m1 इंटू स्मॉल जी, और यहाँ पे आएगा ए को कॉमन निकालेंगे m1 प्लस m2. So we can write the expression for the acceleration a is equal to m2 minus m1 into g upon m1 plus m2. So this is the expression for acceleration of the body. Okay, final जो expression है उसका हम expression लिख सकते हैं. So इसका screenshot ले लो. Now to find the tension along the string, क्या करना है आपको? टेक द रेशियो ऑफ 1 and 2, राइट. रेशियो ले लो by taking ratio of 1/2, देन और डिवाइडिंग 1/2 भी कर सकते, m1a अपॉन m2a विच इज इक्वल टू m1a कितना है t माइनस m1g डिवाइड बाय m2g कितना है m2g माइनस t, m2g माइनस t, मतलब m2g मतलब ये वाला, ओके. तो अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन कट हो जाएगा, तो वी कैन राइट m1 अपॉन m2 विच इज इक्वल टू t माइनस m1g डिवाइड बाय m2g माइनस कैपिटल T. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्या लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m1 m2g माइनस m1t विच इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाइड होगा m2 कैपिटल T माइनस m1 m2g. बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते, कैंसिल नहीं होगा, ये इधर आ गया डबल हो जाएगा, वो ये इधर आ गया तो क्या आएगा m1 m2g माइनस प्लस m1 m2g विच इज इक्वल टू m2t प्लस m1t. यहाँ पे टेंशन ले लो, टेंशन विल बी टेंशन इंटू ब्रैकेट m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा m1 प्लस m2 ट्वाइस m1, ट्वाइस m1 m2 डिवाइड बाय इंटू g. So T is equal to twice m1 m2 divided by m1 plus m2 into small g. Yes, correct. So tension is equal to 2 m1 m2 upon m1 plus m2 to g. So this is what the expression for the acceleration and tension. वापस मैं एक बार समझाता हूँ बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये जो पुली है विच इज़ फिक्स पुली है, एंड इस पे जो फ्रिक्शन है पुली का वो फ्रिक्शनलेस है, एंड जो स्ट्रिंग है दैट इज इनएक्सटेंसिबल, जो खींचा नहीं जा सकता, ऐसा एक स्ट्रिंग है, दूरी है, राइट. और इधर एक मास लगा है, इधर एक मास लगा है, राइट. ये मास हो सकता है ज़्यादा होगा, इसलिए इट इज़ एक्सीलरेटिंग इन दिस राइट साइड. तो सेकंड मास नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ऐसा हमको इमेजिन करना है, राइट. तो हियर दी व्हाट आर दी फोर्सेस एक्ट ऑन इट. तो हमको फोर्सेस जो है
बॉडी पे, दोनों बॉडी पे। अभी एक ये पूरा सिस्टम है, राइट। उसको सेपरेट करना है हमको कि ये बॉडी पे फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, ये बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्टर, सेपरेट करना है। तो वी आर ड्रॉन हियर सेपरेटली, राइट। तो अभी देखो, इफ यू टेक दिस बॉडी हियर m1 विद मास इज m1, द वेट ऑफ द बॉडी m1 दैट विल बी m1g विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो टेंशन T आ गया ऊपर, राइट। नाउ द टेक द सेकेंड बॉडी को अलग से ड्रॉ किया। द वेट ऑफ द बॉडी m2g एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसको नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पे टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। देन फॉर द मास 1 हाउ कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी ये बॉडी ऊपर जा रही है, राइट। तो अपर जो भी है एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगा, जो भी है पैरामीटर वेक्टर क्वांटिटी, उसको पॉजिटिव लेना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज राइट एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द मास 1, इसका लेंगे पहले। तो क्या आएगा यहाँ पे, टेंशन ऊपर के साइड पे T माइनस m1g, यहाँ पे ये दोनों को फोर्स को ऐड करना है, वी हैव टू ऐड दिस, सो T प्लस माइनस, अभी एक्चुअली ऐड हुआ है लेकिन इसका डायरेक्शन निगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए क्या आएगा T माइनस m1 इंटू जी विच इज इक्वल टू F विच इज इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ पे ma मतलब मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस बॉडी इज मूविंग अप, ओके। अगर मान लो रेस्ट पे, तो ये पैरामीटर 0 हो जाएगा। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, सो दिस पैरामीटर विल बी 0, लेकिन यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो m1 इंटू ए। अगर ये इक्वेशन लिखने को आपको आ गया, क्योंकि इसके बेस पे फ्री बॉडी डायग्राम पे देर आर 2 or 3 न्यूमेरिकल आस्क्ड फॉर एडवांस एग्जाम, जी मेन्स एंड CET ऑल्सो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फिजिक्स, राइट, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, राइट। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो रही है वो अगर लिखने का आ गया, देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। अभी सेकेंड बॉडी लेते, सेकेंड बॉडी पे यहाँ पे दिस वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओके। तो टेंशन जो ऊपर ही रहेगा, तो T माइनस m2g इज इक्वल टू माइनस m2a, T माइनस m2g इज इक्वल टू माइनस m2a, बट मेक दिस पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव करना है। अगर इसको पॉजिटिव करना है तो क्या आएगा, ये इसका चेंज हो जाएगा यहाँ पे, m2g माइनस T इज इक्वल टू m2 इंटू a। नाउ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो। आफ्टर एडिंग एंड सॉल्विंग you will get the expression for acceleration, that is m2 minus m1 upon m1 plus m2 into small g, okay। अगर टेंशन फाइंड करना है तो क्या करने का, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है, जस्ट डिवाइड इक्वेशन 1 by 2, then we can write m1a upon m2a is equal to T minus m1g upon m2g minus T। यहाँ पे कट हो जाएगा, एक्सेलरेशन कट हो जाएगा, m1 by m2 T minus this after cross multiplication and we'll get this expression। So this is the tension and this is the acceleration, okay। To understand this more better, we can have the numerical based on this। तो अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में we will solve few numerical based on this free body diagram and the few numerical based on gravitational force और electromagnetic force, जो हमने पढ़ा है टाइप ऑफ फोर्सेस। तो टाइप ऑफ फोर्सेस और ए फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे जो भी न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में होगा, ओके। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू।